Welcome to EduRev. This is the part 4 of the video series, and here we will start with one of the most favorite topics of UPSC, that is Gautam Buddha. Now, if you see the previous year papers of UPSC, especially the prelims examination, very often you will find at least one question from Buddhism or Gautam Buddha. If you have to understand Buddhism or Gautam Buddha, Class 6 History NCERT is an excellent source because it starts from the very bottom and it gives you a basic understanding. Now, Gautam Buddha was born as Siddharth, also known as Gautam. He was the founder of Buddhism and was born about 2500 years ago. Now, there was a time that at that particular time, about 25 years ago, काफी कुछ बदल रहा था. A lot of new cities were developing, a lot of new villages were coming up, people were now having different forms of government. अलग-अलग type की governments आ रही थी, and Buddha was born at this time. He belonged to a small Gan called the Sakya Gan, and he was a Kshatriya by his caste. Now, he belonged to a very comfortable family. He belonged to, or he was son of a ruler. Because of that, he had all the comforts in his life. His father also made sure that he has all the comforts. In fact, his father did not even allow him to leave home, because his father thought if he leaves home, if he goes outside, he will get to know that the life also has a lot of struggles and not everyone is happy. So, सिद्धार्थ या गौतम को बचाए रखने के लिए, टू नॉट शो हिम द रियलिटी ऑफ लाइफ, उनके फादर उनको बाहर भी नहीं जाने देते थे. उनको बाहर जाते थे जब वो, तो उससे पहले ही सब जितने भी गरीब लोग थे या कोई अच्छा नहीं था या कोई बीमार था, उन सबको हटा दिया जाता था सामने से. बट फाइनली he decided to leave his house, go on his own path of realization. उन्होंने meditation किया for many days under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, और वहाँ पे उनको enlightenment मिला. After his enlightenment, he was called as the Buddha. Buddha means the wise one. So Buddha is actually a noun which means a wise one. So कोई भी अगर if someone attains enlightenment, someone attains the real knowledge, उसको बुद्ध आप बोल सकते हो. After his enlightenment, वो सारनाथ गए. He went to सारनाथ, वाराणसी के पास में जो कि है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम उन्होंने sermon दिया, उन्होंने लोगों को पढ़ाया. He spent the rest of his life traveling. बाकी लाइफ वो घूमते रहे, और जगह से दूसरी जगह लोगों को पढ़ाते रहे, लोगों को समझाते रहे the basic truth of life until he passed away at a place called Kushinara. कुशीनारा में उनकी डेथ होती है. Now, what did Buddha teach, और बुद्धा को क्या समझ में आया from his enlightenment? The single biggest truth that Buddha preached to people was the life is full of suffering and unhappiness. आपका जो पूरा जीवन है वो suffering और unhappiness से भरा हुआ है. क्यों? Because these sufferings and unhappiness are because of your desires and cravings. मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए. All these cravings and desires are the root cause of your suffering. जो आपकी cravings हैं, desires हैं, that cannot be fulfilled. आपको अभी कोई चीज़ मिल जाएगी, फिर आपको कुछ और चाहिए होगा, कुछ और मिल जाएगा, फिर आपको तीसरा चाहिए होगा. It is an unending quest for having something, and that makes a person unhappy, that makes a person suffer. बुद्ध ने डिस्क्राइब किया कि यही एक पूरा सच है. दिस इज, और इस सच को उन्होंने कहा कि ये जो हम लोग ढूंढते रहते हैं हर चीज को, दिस इज कॉल्ड आवर थ्रस्ट और आवर तन. तन और थ्रस्ट इज आवर नेवर एंडिंग डिजायर टू अचीव समथिंग, आवर नेवर एंडिंग डिजायर टू गेट समथिंग. ये लोगों से हमेशा बोलते थे बुद्ध कि आपको कोई भी चीज मॉडरेशन में रहनी चाहिए, ना ज्यादा खुश ना ज्यादा दुखी. हर आपका जो भी फीलिंग है या कोई भी आपके अंदर किसी भी तरीके का कोई इमोशन होता है, दैट शुड ऑलवेज बी इन मॉडरेशन. और यही बुद्धिज्म की पहचान बन गया. बिकॉज बुद्धिज्म सेड एवरीथिंग शुड बी इन कंट्रोल, इन द मिडल, नॉट इन द एक्सट्रीम्स. पीपल फाउंड इट ईजी टू फॉलो. लोगों को लगा ये आसान रिलीजन है. बिकॉज हिंदुइज्म में बहुत सारे रिचुअल्स थे, लोगों को बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते थे. जैनिज्म ऑन द अदर हैंड वाज वेरी एक्सट्रीम, कि बिल्कुल एक्सट्रीम नॉन वायलेंस पर जाना पड़ता था. बट बुद्धिज्म ऑन द अदर हैंड वाज अ मीडिएट और मॉडरेट रिलीजन. उन्होंने सिखाया कि आपको काइंड रहना है, लोगों से अच्छे से बर्ताव करना है. यू हैव टू रिस्पेक्ट वन अनदर, यू हैव टू रिस्पेक्ट द एनिमल्स ऑल्सो, एंड द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शन, जो आपका कर्मा होता है,
चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, विल इफेक्ट यू इन दिस लाइफ एंड इन द नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो। अगर आप अच्छा करते हो, इफ यू डू गुड डीड, यू कैन एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू हैपन टू यू। इफ यू डू बैड थिंग्स, यू कैन एक्सपेक्ट बैड थिंग्स टू हैपन टू यू इन दिस लाइफ एंड इन द नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो। एक और जो चीज बहुत स्पेशल थी बुद्ध के बारे में वाज दैट ही टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन। ऑर्डिनरी जो लोगों की लैंग्वेज थी प्राकृत, उसमें इन्होंने पढ़ाया। जो सरमन होते थे वो संस्कृत में नहीं होते थे, बिकॉज संस्कृत कुछ ही लोगों को आती थी, बिकॉज वेरी फ्यू पीपल वर अलाउड टू बी टॉट, स्टडीज करना अलाउड नहीं था। कॉमन जो लैंग्वेज थी लोगों की वो थी प्राकृत, एंड बिकॉज ही टॉट इन प्राकृत, लोगों को एंकरेज करते थे कि आप सोचिए अपने बारे में, और बहुत सिंपल भाषा में समझाते थे। पीपल वर अटैच्ड और अट्रैक्टेड टू द पर्सनैलिटी ऑफ बुद्ध। At that time, another kind of books started to emerge. These were called the Upanishads. Now, what were Upanishads? See, when Buddha was preaching to people, और जो उनके आसपास के thinkers थे, they also started asking many difficult questions. हम पैदा क्यों हुए हैं? What is the purpose of our life? What happens after death? Can death be avoided? Rebirth होगा कि नहीं होगा? ये जो philosophical questions थे, these philosophical questions and their answers, their discussions, उन्हें रिकॉर्ड किया गया बुक्स में, which are called Upanishads. So Upanishads are books which have philosophical questions and answers. They have philosophical discussions for the people to understand life better, to understand what happens after life and how the human soul changes from one birth to the other. They believe that ultimately both the Atman, that is the Atma, and the Brahmin were one. So according to Upanishad, जो philosophy थी हमारी जो लिखी गई थी, उनके हिसाब से once a man dies, मरने के बाद भी the body passes away, but the Atman, that is the soul, that goes on, takes the next birth. ये जो soul है इसी को Brahmin कहा जाता था. So Brahmin and Atman were one as per the Upanishads. They were part of the later Vedic text. जो वेद लिखे गए थे उनके बाद इन्हें लिखा गया था, इसे इनको लेटर वैदिक टेक्स्ट भी कहा जाता है। उपनिषद को अगर आप ट्रांसलेट करोगे दूसरी लैंग्वेज में, तो उपनिषद का सिंपल सा मतलब होता है टू अप्रोच एंड सिट नियर समवन, कि आप पास आके बैठिए। तो बेसिकली इट्स अबाउट टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। होता है ना, जो टीचर्स होते हैं उनके पास आके स्टूडेंट्स बैठते हैं एंड देन दे आर टॉट। सो उपनिषद का मतलब ये होता है कि फिलोसॉफिकल डिस्कशन के लिए टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स विल कम टुगेदर। जो उपनिषद जिन लोगों ने लिखे थे, मोस्टली दे वर मेन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड द राजा। सो दे वर द वन जिन्होंने उपनिषद और फिलोसॉफिकल डिस्कशन लिखे थे। नाउ गोइंग बैक टू बुद्धिज्म वंस अगेन, जैसा मैंने बताया, एज पर गौतम बुद्ध के हिसाब से लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। क्यों? बिकॉज आवर क्रेविंग्स नेवर एंड। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, डिजायर्स नेवर एंड। अगर डिजायर्स को खत्म करना है, आपको 8 फोल्ड पाथ पे चलना पड़ेगा। There are 8 principles you have to follow अगर आपको अपनी desires को खत्म करना है। ये वो 8 principles हैं: right view, right intentions, speech, action, livelihood, effort, concentration and mindfulness। इसे अष्टांग पद भी कहा जाता है, means the 8-fold path। Then इसके अलावा कई बार उपनिषद में कुछ फीमेल थिंकर्स की भी बात है। एज आई सेड अर्लियर, जैसे ऋग्वेद में था सारे मेल्स नहीं लिखा था, कुछ फीमेल सेजेस भी थे। ऐसे ही उपनिषद में भी देयर वर सम फीमेल थिंकर्स जिनका नाम देखा जाता है, जैसे कि गार्गी वॉज वेरी फेमस फॉर हर लर्निंग। उन्होंने कई सारे डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया रॉयल कोर्ट में। इसके अलावा जो पुअर लोग होते, जो गरीब होते थे, उनको यूजुअली इन फिलोसॉफिकल डिस्कशन में पार्ट नहीं लेने दिया जाता था। बट कुछ एक्सेप्शंस भी थे। कुछ एक्सेप्शन, जैसे कि एक एक्सेप्शन थे सत्यकाम जबाला कौन थे? ही बिलोंग और हिज मदर वॉज अ स्लेव जिनका नाम था जबाली, वहां से इनका नाम आया। ही हैड अ ग्रेट डिजायर, इनकी इच्छा थी कि मुझे पढ़ना है, मुझे फिलोसॉफिकल डिस्कशन में पार्ट लेना है। इसीलिए एक ब्राह्मण टीचर ने उनको श्रेय दी, और एक ब्राह्मण टीचर गौतम के नाम से उन्होंने कहा कि आइए मैं आपको पढ़ाऊं। सो उपनिषद ज्यादातर मेन इन्फ्लुएंशियल मैन वो लोग लिखते थे, बट फिर भी कुछ फीमेल, कुछ पुअर लोगों के नाम है उपनिषद में। उपनिषद के कई सारे आइडियाज को बाद में डेवलप किया गया, उसमें से सबसे फेमस थिंकर थे शंकराचार्य ने उपनिषद से काफी सारे आइडियाज को बाद में इम्प्लीमेंट किया, बाद में उसको और फेमस बनाया थ्रू आउट द कंट्री। बुद्धिज्म के साथ वन अदर रिलीजन दैट पिक्ड अप उस टाइम पे अबाउट 2500 years ago was जैनिज्म। जैनिज्म के जो हेड होते थे उनको तीर्थंकर कहा जाता था।
द मोस्ट फेमस तीर्थंकर जो थे जैन्स के, उनका नाम था वर्धमान महावीर। बुद्ध की तरह ही वॉज ऑल्सो क्षत्रिय प्रिंस एंड ही बिलोंग टू द लिच्छवी गण। ये लिच्छवी गण कहा था, वज्जी संघ में था। इफ यू रिमेंबर इन पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो सीरीज हमने वज्जी के बारे में बात की थी। एट द एज ऑफ 30, जब 30 ईयर्स के हुए, बुद्ध की तरह ये भी अपने घर से निकल गए फॉरेस्ट में जाने के लिए। 12 साल तक ये अलग अलग जगह पे गए, इन्होंने मेडिटेट किया टू अटेन एनलाइटनमेंट। इन्होंने बहुत सिंपल सा एक अपना डॉक्ट्रिन दिया, बहुत सिंपल सा लोगों को शिक्षा दी। Men and women who wish to know the truth must leave their homes। अगर आपको एनलाइटनमेंट चाहिए तो घर के कंफर्ट से आपको नहीं मिल सकता। The first requirement to attain enlightenment, to achieve the truth, is that you have to leave your home। आपको अपने घर से बाहर आना ही पड़ेगा। Now, as I said earlier, जैनिज्म और बुद्धिज्म में कुछ डिफरेंसेस थे। जैनिज्म काफी स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ, अहिंसा के रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। मतलब आप एनिमल्स को नहीं हर्ट कर सकते, एनिमल मतलब किसी भी एनिमल को नहीं, कोई इंसेक्ट भी नहीं, कोई इनविजिबल बैक्टीरिया भी नहीं। इसीलिए अगर आप देखो जो जैन मॉन्क्स होते हैं हु आर वेरी वेरी रिजिड, वो मेडिसिन भी नहीं खाते हैं और बीमार होते हैं फिर भी, बिकॉज मेडिसिन खाएंगे तो उनके अंदर के जर्म्स मेडिसिन मारेगी एंड दे डोंट वांट दैट। तो वो अपने खुद के जर्म्स को भी नहीं मार सकते। दिस इज हाउ एक्सट्रीम दे आर। महावीर के हिसाब से टू ऑल थिंग्स इन लाइफ इज डियर। सब जितने भी लोग हैं, जितनी भी हमारी लिविंग बीइंग्स हैं, सबको अपनी जिंदगी उतनी ही प्यारी है जितनी हमें। तो छोटी से छोटी किसी कीड़े को, किसी इंसेक्ट को भी यू कैन नॉट किल। इनकी टीचिंग्स भी वर इजी टू अंडरस्टैंड एंड दे वर आल्सो इन प्राकृत, मतलब कॉमन मैन की लैंग्वेज में। देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत। प्राकृत की भी कई सारे फॉर्म्स थे अलग अलग, नेम्ड आफ्टर द रीजन फ्रॉम विच दे वर यूज। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की प्राकृत को यूज किया जाता था। जो लोग महावीर को फॉलो करते थे उनको जैन्स कहा जाता था। दे लेड अ वेरी सिंपल लाइफ, दे हैड टू बेग फॉर फूड। उन्हें खाने की भीख मांगनी पड़ती थी, हमेशा सच बोलना पड़ता था और कभी कुछ चुरा नहीं सकते थे। उनको सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का ऑब्जर्वेशन करना पड़ता था। मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। क्लोथ्स भी आप नहीं पहन सकते थे। एज आई सेड, इट वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट रिलीजन टू फॉलो। जैनिज्म को मेनली ट्रेडर्स ने सपोर्ट किया था ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक इसमें एंगल है। सी, ट्रेडर्स हैड मनी, सो ट्रेडर्स वांटेड इन्फ्लुएंस, भाई हमारी बात मानी जाए सोसाइटी में। बट जो यूजुअल हमारा कास्ट सिस्टम था, वहां तो ब्राह्मण्स होंगे टॉप पे, जो ट्रेडर्स हैं वो तो वैश्य होंगे थर्ड नंबर पे। सो ट्रेडर्स, बिकॉज दे हैड मनी, दे वांटेड इन्फ्लुएंस। ट्रेडर्स को कुछ ऐसा रिलीजन चाहिए था जो कि वो सपोर्ट कर सकें, जो कि उन्हें सबसे ज्यादा पावरफुल बनाए। इसीलिए कई सारे ट्रेडर्स ने जैनिज्म को सपोर्ट करना शुरू किया। फार्मर्स भी सपोर्ट करना चाहते थे, बट दे फाउंड इट डिफिकल्ट। फार्मर्स को बोला आप इंसेक्ट्स भी नहीं मार सकते, किसी जर्म्स को नहीं मार सकते, तो फार्मर्स अब खेती करेंगे तो इंसेक्ट्स तो मारने होंगे उनको। जैनिज्म फाइनली स्प्रेड हुआ नॉर्थ इंडिया में, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका में स्पेसिफिकली। महावीर की टीचिंग्स कई सारी सेंचुरीज तक, फॉर मेनी सेंचुरीज दे वर ट्रांसमिटेड अक्रॉस द कंट्री and they were written down at a place in Gujarat called Vallabhi। वल्लभी नाम से एक जगह है गुजरात में जहाँ जैनिज्म की सारी टीचिंग्स को, महावीर की सारी टीचिंग्स को लिखा गया है अबाउट 1500 ईयर्स।